क्या आपको साइंस सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगती है? फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री की रिएक्शन एंड बायोलॉजी की डायग्राम? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। This is our subject wise series of day 2 of science. So let's start the video. The biggest mistake students are doing, they assume science is only a one subject. Science is particularly a three subject combination. You have different strategy to study physics, chemistry and biology. Don't treat it like a single particular subject. Now talking about that feels so hard in science physics. So first of all I will tell you, you need to make your concept very strong. So focus on your concept first. Now second is formulas. टिप्स पर होने चाहिए आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, अलग से एक शीट पे बना लो फॉर्मूला या फिर अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका लो उन्हें, और जो सुबह थोड़ा सा 15 मिनट्स का टाइम मिलता है उनमें उनको पढ़ लो। पढ़ने से ही वो याद हो जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, लेंस के डायग्राम्स हैं, कुछ रे डायग्राम्स हैं आपके, एंड सॉलिनॉइड, बार मैग्नेट, ह्यूमन आई, जितने भी रेनबो फॉर्मेशन के वो डायग्राम्स हैं उनको 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो। और लेवलिंग पे मिस्टेक बिल्कुल मत करना और न्यूमेरिकल पे फोकस करो। वो तो प्रैक्टिस 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 से ही होगा। आई कैन डू एनीथिंग विद इट। सो अगर आपको क्वेश्चन को इजी समझना है न्यूमेरिकल्स में, then you can first read slowly your question, then write down what is given, then try to solve it as much as possible. Then at the end, don't write your answer without the box. Put your answer in the box and don't forget to write its units, and also the SI units are very important. So physics के लिए तो यही कहूँ, पहले theory then numericals, right? नाउ वी आर मूविंग टू केमिस्ट्री। अब देखो, रिएक्शन को रटना एक अलग बात है पर रिएक्शन को समझना एक अलग बात है। कि अगर प्रेसिपिटेट बनना है तो ये क्यों बनना है, कुछ आपकी बीपीटीज होती हैं, कुछ ही होती हैं, उनको याद कर लो। देन फिर आपको समझना होगा कि कॉम्बिनेशन है क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो रिएक्शन धीरे धीरे करके अपने आप ही बनने लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा वो रटनी पड़ेंगी, बट हाँ आपको कलर्स याद रखनी पड़ेंगे, आपको उनकी स्टेट याद रखनी पड़ेगी। और रिएक्शन बनाने के लिए भी जैसे कुछ रिएक्शन होती है जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी होती, तो उन्हें बनाने के लिए आपको इस चार्ट को याद करना पड़ेगा। देन उस हिसाब से रिएक्शन बनती है। अगर आपको बेस नहीं पता है तो प्लीज पहले से स्ट्रॉन्ग करें, देन यू विल गेट द पॉइंट कि तब आपको रिएक्शन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि ये ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों बना, ऐसी ही स्टेट क्यों बनी, उसका पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। When I saw the last chapter carbon and compound, my mind got diverted. I can't understand anything, but regular practice, daily revision helped me a lot, and I end up scoring full marks in my chemistry at all. From there, chemistry becomes my favorite. And also carbon and compounds is important chapter, like alcohol and ethanoic acids are important. Their structure, how to make structure of alkene and alkynes are important, and the most important, ethanoic acid formation reactions. So practice a lot of reaction as much as possible. And there are specific scientific terms like the names of the reaction, because if scientific names are incorrect then it will deduct your marks for this. Now for biology, try to relate it with real life. For example, if I eat food, then what I think that my food goes to esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine. Now the large intestine absorb water. So try to relate it with natural life. Like the sunlight is coming, then I was thinking what happened to plants, they absorb it, then doing their photosynthesis process. To try to relate it with your real life. Diagram practice and correct labeling is important in there. I would say अब CBSE जो डायग्राम आपको बनाने के लिए देगा, लेबल करने के लिए देगा, तो लेबलिंग पे ज्यादा फोकस करना। एंड कीवर्ड्स जितने भी उन्हें हाईलाइट कर लेना अपनी बुक में, जैसे कि मैंने ऐसे किए थे तो आप भी कर सकते हो। और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसकी एक भी एक्टिविटी नहीं छोड़नी, एक भी इंपॉर्टेंट येलो बॉक्सेस नहीं छोड़ने आपके। लास्टली अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं तो आपको किस किस चीज पे फोकस करना है? कॉन्सेप्ट, कीवर्ड, फॉर्मूला, डायग्राम, रिएक्शन, एंड यूज बुलेट पॉइंट इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ। एग्जामिनर बिकम फ्रस्ट्रेटेड व्हेन यू राइट लॉन्ग पैराग्राफ, सो ट्राई टू कीप योर इन एग्जाम ट्राई टू कीप बुलेट पॉइंट्स एंड डोंट फॉरगेट एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के चले आ रहे हो फिजिक्स की एक्टिविटी, केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, चाहे फिजिक्स की हो, तीनों करनी है आपको। सो बुक्स कुछ सजेस्ट कर देती हूँ। देखो बुक्स तो मैंने तो एनसीईआरटी की थी, एनसीईआरटी के अलावा मैंने की थी पीडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एमटीजी लो साइंस की, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं एंड मैंने वो पूरी फिनिश की थी, उस पर पीडब्ल्यू की नहीं हुई थी।
और उसमें भी थोड़े से मतलब कम क्वेश्चन है, बट आपको मीम्स एंड टाइमलाइंस है एवरीथिंग एक्स्ट्रा ऐड ऑन उसमें। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो गो विद एमटीजी, अगर ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, माइंड में फोकस करना है, देन गो विद पीडब्ल्यू क्वेश्चन। एंड आई हैव अ सैम्पल पेपर जो कि मेरे पास एडु कार्ड के थे, दे आर नाइस, बट उसमें 6 ही थे, मैंने 6 के 6 कर लिए थे। तो आपको एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर तो करने हैं। एंड लास्टली आई वुड से साइंस इज नॉट हार्ड, but your wrong strategy makes science look hard. So that's it for today's video. I hope you like it. Bye.